सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाँ भाई, तो आज का आर्टिकल है स्वामी तुरानंद जी का जीवनी है। तो मैंने समझा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग जीवनी है और कुछ लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत लाभ होगा। तो मैं शिवा अपने ईतू घोष से कहता हूँ कि भाई वो कृपया उसकी समरी कर दें। जी, प्रणाम महाराज। A biographical introduction. Swami Turiyanand. Swami Turiyanand, previous name Harinath Chattopadhyay, was born on January 3rd, 1863 in North Calcutta. His parents died in his childhood and he was brought up by his brother and sister-in-law. From his childhood, he was inclined to austere spiritual life. Once in his teenage years, while bathing in Ganga at daybreak, he saw a crocodile floating near him. People at shore shouted and warned him. He went near the shore to knee-deep water, but immediately changed his mind and went back into deep water. He thought to himself that he used to repeat Soham, Soham. What happened? हाँ, ये चला गया। अच्छा, देखते हैं। Soham, Soham. And now forgot the ideal that he was not the body. That crocodile went back without harming him. He left his secular studies before entrance exam, but studied Vedanta philosophy in Sanskrit, attended Bible classes, and was very adept at the gymnasium. He decided to lead an ascetic life. He first met Sri Ramakrishna at Dinanath Babu's house in Calcutta when he was 13 or 14 years old, and went his second meeting and had his second meeting in 1878-79. After that, he became a frequent visitor. Sri Ramakrishna answered at his queries and taught him about ascetic life in a simple, natural, and effective way. For some time, he was deeply engrossed in Vedantic sadhana and following Shankaracharya. One day, Sri Ramakrishna called Harinath while visiting Balaram Babu's house and inquired about his well-being. Master said, nothing can be achieved without God's compassion, and went into Samadhi. After regaining consciousness, he sung the song from Uttara Ramcharitam, sung by Hanuman. Hari had tears trickling down his eyes and got a lesson which was forever imprinted in his mind. Later he confessed this. The master said, everything is not in scriptures. It is life that inspires life. The master, through his sadhana, made a perfect mold of divine life and taught his disciples how to cast their own light. Accordingly, Swami Turiyanand depicted those days at Dakshineshwar as heavenly and found the master often God intoxicated.
He would even correct the posture of the disciples while meditating and guide them for every single discipline which used to bring them into an ethereal region. Living with Sri Ramakrishna was itself a great education. He taught them how to attain perfection in services as well as samadhi, and they explored various aspects of spiritual life. After the master's passing away, Sri Ramakrishna passed away at the Kashipur Garden House on 16th August. Then disciples moved to Baranagar, and in early 1887 they took monastic vows. Harinath became Swami Turiyanand. He traveled throughout the western and northern part of India, all on foot, and then to Haridwar, Rishikesh, Uttarkasi, so on. He also traveled extensively with Swami Brahmananda. Along with travel, he also studied a lot. At Puri, in the Jagannath temple, he experienced Anahata Dhwani. Narahari's verse had a great effect on him. His life was molded by Shankara before he met Sri Ramakrishna, and he wanted to stay in austerity for the rest of his life. Swami Vivekananda called him to come to his aid in fulfilling the mission of the master. In America, in June 1899, he went to England with Swamiji and Sister Nivedita. In August 1899, they left for New York in America. Swami Atulanand praised him and said that he talked with fire and enthusiasm and used to lose himself in his subject. He wanted his students to be a lion and break the cage to be free. He had to manage the project of a retreat center in Northern California, where a land of 160 acres was donated by Miss Minnie C. Brooke to Swami Vivekananda. He named the retreat as Shanti Ashram over narrow mountain roads to the San Antonio Valley. There he, along with the devotees, suffered a lot for water, shelter, food, etc. He was disappointed and prayed to Mother. Mrs. Agnes Stanley, one of his students, emptied her purse and asked to have faith on Mother. So he named her as Shraddha. They had to undergo tremendous hardship to build this ashram. He did not frame any formal rule, but still everything ran nicely and orderly. He used to say that is Mother's way of ruling. This kind of organization is the highest, based on spiritual law, and makes one free. He used to insist on meditation, which will open the door to truth. Meditate till the light flashes into your mind, and the ashram and the Atman stands self-revealed. According to him, human planning is all in vain if she does not consent. He emphasized loving her sincerely and giving oneself to her. This does not mean idleness, but trying to know her will and doing it like a man. He emphasized on reading books written by men of realization. He was a source of constant joy and inspiration. Sometimes he was gentle, sometimes the roaring lion of Vedanta.
Swami Turyanand went to visit India in June 1902. After his recovery, following a bout of all of ill health, reaching Rangoon, Burma, he heard about Swami Vivekananda's passing away. Last years in India, he spent most of his remaining years in the northern part of India. In 1919, he moved to Varanasi and lived there until the end. He passed away on 21st July 1922. Which he told his attendant the night before that the next day was the last day of his life. At his last moment, he expressed his life experiences. Everything is real. Brahman is real. The world is real. The world is Brahman. The life force is established in truth. Hail Ramakrishna. Hail Ramakrishna. Say that he is the embodiment of truth and the embodiment of knowledge. Swami Turyanand justified his name. He tested the bliss of transcendental Brahman and he shared that bliss with each and all. Like a true mystic, he silently transformed many lives in the East and the West. ओके, वो जो अभी कहा ना, वो उन्होंने यहाँ पे आखिरी में कहा था, है ना, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्य सत्य प्रतिष्ठितम। संस्कृत में उसको बोलेंगे ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये नहीं है जीवो ब्रह्म है वना पर, ऐसे नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्य सत्य प्रतिष्ठितम। जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण, ये उन्होंने यहाँ पे कहा था। ये बनारस में, ये कभी हमारे यहाँ पे अभी भी कोई कमरा है, उसको आजकल बंद रखते हैं, कोई प्रेसिडेंट महाराज आते हैं तब रखते हैं, कभी कभी हम लोग उसको श्राइन के रूप में यूज किया करते। आखिरी के 3 वर्ष वो यहीं पर रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है। ये तो शॉर्ट में समरी किया गया। एक्चुअली जो लाइफ दी है वो भी एक शॉर्ट ही है। एक्चुअली उनके जो उसके बाद में हम एक एक करके उनके एक लेटर्स लेने वाले हैं और लेटर्स देंगे, उसके अंदर उनकी टीचिंग्स जो है वो बहुत क्लियरली मिलेगी और उन टीचिंग्स को हम अगले यानी इसके बाद में हम सीरियली इसको इस जूम मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। एनीवे, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इसको अच्छी तरह खुद पर्सनली सबको इस लाइफ को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, अब तक क्वेश्चंस आ जाइए। महाराज जी मैं सुबीर बोल रहा हूँ। मुझे मदर को एयरपोर्ट छोड़ना है, तो मैं जब गाड़ी में बैठूंगा तब मैं सवाल शायद नहीं कर पाऊँ। क्या मैं सवाल पहले कर सकता हूँ महाराज जी? अभी 1 मिनट पहले अभी कर सकते हो, मेरे को आपत्ति नहीं। कुंडू को भी जाना है तो मैंने कुंडू को पहले बोला है करने को, 5-10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद तुम कर लो। नहीं महाराज, नहीं तो सुबीर जी को करने दीजिए उसके बाद। अच्छा ठीक है, और थैंक यू कुंडू। मैं एक लाइन पूछ रहा था महाराज, आपने जो ये ब्रह्म सत्य जगत सत्य सत्यम सत्य प्रतिष्ठिताम, इसका हिंदी में एक लाइन अर्थ बता दीजिए। वही जो ब्रह्म, जैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कहते हैं शास्त्रकार। ये जगत मिथ्या है, ये असत्य है, ब्रह्म ये एकमात्र सत्य है। लेकिन तुरानंद जी कहते हैं ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, किसी को मिथ्या नहीं कहा। सत्य में सत्य प्रतिष्ठित है, यानी ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और ये जगत भी सत्य है। ये हो गया जी। अच्छा चलो सुबीर मजुमदार, चलो। महाराज जी पहला सवाल है ऑन पेज 15 जो प्रिंटेड है पेज में, उसके हिसाब से स्वामी तुरानंद बोलते हैं that Shri Ramakrishna said that he was a monk, मतलब स्वामी तुरानंद को उन्होंने monk बताया according to the precepts of Gita. तो please explain who is a monk as per Gita. एक गीता में उसको स्थित प्रज्ञ दर्शन पढ़ो।
हाँ महाराज, सेकंड चैप्टर हाँ 54 to 72। हाँ महाराज। चित्तप्रज्ञ है ना? हाँ जी महाराज। तो उसमें क्या है कि वो पूरा चित्तप्रज्ञ जो है वो हाँ। उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा। और क्या और भी क्वेश्चन है ना तुम्हारा? वो तो चित्तप्रज्ञ हो गया, ठीक है। हाँ। So दूसरा जो स्थित प्रज्ञा का जो पूरा थीम है, that is the monkhood, that is the ideal of monkhood, यही बता रहे हैं ना? हाँ हाँ, स्थित प्रज्ञ हो गया, तो प्रश्न हो गया तो नहीं, तो आइडियल ऑफ मॉन्कहुड इज स्थित प्रज्ञा, इज इट? हाँ 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 अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, सेकंड सवाल है महाराज जी, इन द नेक्स्ट पेज स्वामी तुरानंद मेंशंस हिज प्रैक्टिस ऑफ मौन व्रत ड्यूरिंग नवरात्रिज। हाउ डू वी प्रैक्टिस मौन व्रत इन दिस हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर वी हैव टू डील विद सोसाइटी एवरी डे? हाउ इज इट टू बी प्रैक्टिस्ड? ऐसा है कि कुछ समय तो ऐसा होता है कि तुम सोसाइटी के साथ डील नहीं करते, तुम अपने मकान में रहते हो, तुम जानते हो कि सुबह 7 बजे तक मैं अगर मौन रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। हाँ, और रात को मैं 8 बजे या 7 बजे के बाद में चुपचाप मौन रह सकता हूँ। इस तरह शुरू करो। 3 घंटे 5 घंटे जो हैं वो घर में ऐसे समय में बिल्कुल मौन रहो, और फिर कुछ से बात में नहीं करो, दूसरे लोगों से बात मत करो जी। इस प्रकार से करो। उसके बाद में यदि संडे को हुआ तो आप आधे दिन चुप रहो। ओके। यानी ऐसा क्या है कि सुबह जो है वो स्नान करने तक चुप रहोगे और मेडिटेट करोगे। जी जी। और इस प्रकार से करो, आपका स्पाउस का कोऑपरेशन होवे। कोऑपरेशन, तो जी आप जी। हाँ, दिन भर में जितना चाहो उतना, जितना कर सको उतना घर में करो, तो इतना तो करो। उसके बाद देखोगे कि तुमको दिशा दिखाई देगी। यानी लोगों के बीच में भी लोग बाद में कहेंगे कि अरे ये तो बहुत कम बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, तो क्या भीड़ भाड़ में बात करना आवश्यक है क्या? भीड़ भाड़ में भी तो चुप रह सकते हो। जी महाराज जी। और ड्यूरिंग ये गेट इनटू अ हैबिट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान, अब बिकमिंग मौन। यस। मौन रखते वक्त हमें इशारों में भी मतलब वो शुरू में भले करो, शुरू में थोड़े से एक्सक्यूजेस होने लगो, एक बार मन की आदत हो जाएगी ना तो सब चीजें अच्छी फिर वो भी नहीं करना, यस। जी जी। अच्छा महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी के पेज में, नेक्स्ट पेज में, ऑल्सो ऑन पेज 17-18 ही मेंशंस द फर्स्ट डोर ऑफ योगा अमंग अदर्स इज कंट्रोल ऑफ स्पीच। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीच और वाक संयम? वो है ना, वो क्या श्लोक है जी। योगस्य प्रथमं द्वारो वाक् निरोधो परिग्रह निरीहा निराशा च निष्ठम एकांतशीलता। इसका इंग्लिश दिया होगा, हिंदी नहीं दिया है यहाँ पे, या संस्कृत नहीं दिया है। मैं महाराज इज इट इन विवेक चूड़ामणि दिस शंकराचार्य ने बोला। विवेक चूड़ामणि मोस्ट प्रोबेबली विवेक चूड़ामणि। हाँ हाँ हाँ। योगस्य प्रथमम द्वारा, यस योग प्रथमं द्वारा वाक् निरोध परिग्रह। तुम्हारा प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाक निरोध? वो उससे मन संयम बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरी बात चक्कर नहीं होता, अरे एक बात करो तो अच्छा पूरा पता नहीं क्या क्या होता है। जी जी। यानी वाणी का मौन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक साधना है। जी जी जी। तुम क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, बोलने में जितनी गलती होती है उतनी बहुत अधिक गलतियां होते हैं हम करते हैं। ये हमारे मन को डिस्टर्ब करता है। उसको चुप रहो, वैसे बोलना है कि इतना बोलना है कि जो सत्य है, जो आवश्यक है। बहुत सारी फालतू बातें बोलते रहते हैं हम, तो वो सब कम हो जाएंगे। हाँ, अब हम लोग बात करते ही रहते हैं, समझ में नहीं आता कितना करना क्या नहीं करना। इसलिए अगर मन को कंट्रोल करना है तो वाणी से कंट्रोल करना शुरू करो। जी महाराज, बिल्कुल समझ गया महाराज। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज, on page 18 Swami Turinand says that he would meditate on every verse of Upanishads that he read and committed to memory. Now how does one meditate on a verse महाराज जी? क्यों? मतलब जैसे उदाहरण के लिए लोगों जी, ये तो गीता का बोल रहा हूँ मैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममः निरहंकार शमे। अब ये अद्वेष्टा पे ध्यान नहीं कर सकते? जी जी जी। द्वेष रहित होना, तो क्या जिसके ऊपर ध्यान करो। अच्छा, जो वैल्यूज हैं उस पे मेडिटेट करना। दूसरा है प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मनोगत मन को वासनाएं क्या होती हैं, उनको आपको दूर करना है। कैसे करेंगे? एक एक के ऊपर श्लोक कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल समझ गया, राइट। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अरे भाई तुम इसके ऊपर एक कमेंट्री लिख के दो तो अपने मन से। हाँ, तो वही यस, हाँ, वही मेडिटेशन करके ही कमेंट्री निकल सकता है। थोड़ी कमेंट्री लिखेंगे। जी जी जी, ठीक है महाराज, दैट्स ऑल। प्रजाहाति यथा कामान, जहाति यानी भी तो छोड़ना हुआ, और प्रजाहाति विशेष रूप से जहाति यदा कामान, कामान सर्वान कामान, छोटे कम कामान नहीं, बड़े कामनाएं नहीं, छोटी कामनाएं नहीं, सभी कामनाओं को सर्वान कामना। नहीं हम कामनी कांचन का छोड़ेंगे लेकिन दूसरी चीजें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। जी जी जी, मन में होने वाली तो जी, मन जी, में होने वाली फिर इसके ऊपर चिंतन करो। इस प्रकार से एक एक करके सभी श्लोकों के ऊपर विस्तार से विचार किया जाए। जी जी जी, दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम। हो गया। चंदन कुंडो। यस महाराज। महाराज, Thakur says that scriptures are like sheets of paper with a shopping list on them. But can spiritual life begin without adherence to scriptural injunctions? क्यों नहीं? अरे सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट न दो, चोरी मत करो, संग्रह मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये आपने क्या स्क्रिप्चर से पढ़ा है कि सब जगह हमेशा सुबह शाम सुनते रहते हैं? नहीं, स्क्रिप्चर से नहीं तो पढ़े हैं। यस, तो स्क्रिप्चर में भी है, मिल जाएगा तुमको। सत्यम वद धर्मम तेरा, ये तो है, लेकिन जैसा मैंने बोला वैसा तो नहीं मिलेगा ना। तो कितनी चीजें तो हम जानते हैं कि उसको जीवन में उतारना है, उसके लिए स्क्रिप्चर की क्या आवश्यकता। ठीक। और उसके बाद में गुरु से मंत्र ले लिया, बस। लाटू महाराज ने कितने स्क्रिप्चर पढ़े थे भाई, सुनो तो। ठीक। और ठाकुर ने कुछ बोल दिया, ये करो वो करो, बस वो कर रहे हैं। वो तो गुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, उनको सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। ठाकुर की सेवा करना है मुझे, और ठाकुर ने जो बोला उसको जीवन में उतारना है। इसके लिए स्क्रिप्चर की क्या आवश्यकता है? अरे 90% हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है ना, वो बिना स्क्रिप्चर के चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? यस महाराज। क्या हुआ? नहीं, ठीक महाराज। अच्छा, समझ में आया। Then second question, Maharaj, what is meant by if you want to serve properly, you should completely forget yourself? I always thought that concentrated efforts produced good results, and to concentrate, one has to exert. One has to exert oneself. By forgetting oneself, how can you give your best? No, you already, when you are exerting, पूरी तरह लगे हुए हो तो अपने को भूल गए। तो बच्चा जब खेलता है तो वो अपने को भूल जाता है, उसका कपड़ा ठीक पहना हुआ है कि नहीं है। वो नंगा भी हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं नंगा हो गया हूँ। He is forgetting himself. Okay, Maharaj. Whenever you do anything concentrated, you forget yourself. Okay. अच्छा, yes Maharaj. आई थोड़ी होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये कभी नहीं सोचते हैं। तो continuously forget ourselves. अच्छा, मतलब it comes naturally. If you are exerting, really concentrating, I you will am forget exerting, yourself. I am doing, ये कभी आता ही नहीं बात। Yes Maharaj. Okay Maharaj. Then third question, Maharaj. Swamiji said about Swami Turiyananda that he is Vedanta personified. What are the qualities which sets him apart from his brother monks?
देखो ऐसा है कि यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रदर मॉन्क। अच्छा ये महाराज। हमको करना भी नहीं चाहिए अच्छा कि भाई महाराज। कौन सा तुरानंद जी श्रेष्ठ है या विज्ञानानंद जी श्रेष्ठ हैं। हम दोनों के महापुरुषों लोगों को का जजमेंट हम जज नहीं कर सकते, याद रखो। अच्छा महाराज। दैट फर्स्ट पॉइंट यू रिमेंबर ऑलवेज। यस। डोंट ट्राई टू जज कि भाई तुरानंद जी महान है क्या विज्ञानानंद जी महाराज है। ये बात ये फर्स्ट रिमेंबर। यस। सेकेंडली स्थितप्रज्ञ के दर्शन वो जो है निष्ठा है, तपस्या है, सेल्फ डिपेंडेंस है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, कंप्लीट फियरलेसनेस। किसी ने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि तुमको पकड़ लेंगे, तो पकड़ लो, मेरे क्या, मैं डरते नहीं है मुझसे? अरे किसी से नहीं डरता मैं, भगवान से, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो ये जो क्वालिटीज है ना, वही तो तुमने जो प्रश्न किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? नहीं प्रश्न यही था महाराज, बट आपने बोला कि वो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए और एक मतलब सारे महान है, महापुरुषों के बीच में विचार नहीं करना है। हाँ 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 हाँ, उनका जीवन देखो ना, कितने महान सद्गुणों है, स्वयं उसको देखो बस। ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट करना, उसको कंपेयर करना, ये बड़ा है ना, हम लोगों के लिए ठीक नहीं। ठीक महाराज। यस महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ भाई दिलीप भाई आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ। Yes, my first question: the example of crocodile and elephant given by Swami Ramakrishna Dev, which one should be adopted in life? यहाँ पे crocodile क्या है और ये कहा कि अंत गए, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं क्रोकोडाइल, यहाँ पे जो क्रोकोडाइल की बात है ये दूसरी बात है। यहाँ पे तो दूसरी बात हो रही है ना जी। नहीं पर यहाँ पे तो वो गाय स्नान करने गए तो किसी ने कहा मगर है तो डर के भाग आए, है ना? नहीं पर फिर वापस गए। हाँ, इसलिए उनको कहा कि मैं डर क्यों गया, अरे राम राम, मुझे डरना नहीं चाहिए। हाँ, तो वही मेरा कहना था कि जब वो एलिफेंट वाला एग्जाम्पल है उसमें भी तो ये था कि महावत भगवान है तो हाथी भी भगवान है, तो समझना था। तो यहाँ क्रोकोडाइल जब थे तो हिम्मत क्यों की गई? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भगवान की बात नहीं आई है। उसको उन्होंने पूछा क्या भगवान है, उन्होंने ये नहीं पूछा भगवान है। वहां पे तो हाथी नारायण है और महावत नारायण है। हाथी और महावत की बात है वहां पर, तो क्रोकोडाइल कहाँ है वहां पे? हाथी और महावत की बात हो रही है तो दूसरी चीज है वो। अच्छा, तो सब गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, राइट। और दूसरा जो है लक्षण वो तो है कि हाथी स्नान करने गया और मगर ने उसके पैर पकड़ के खींचा। जब वो डूबने लगा तो भगवान को पुकारा। ये तो जहाँ भी क्रोकोडाइल है वो सबको मिला रहे हो तुम बाबा। अच्छा, नहीं। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अच्छा जी महाराज, ये तो बिल्कुल दूसरी चीज है। ये दूसरी चीज है। उनको डर लगा, तुमने कहा कि मैं क्यों डरता हूँ, मैं तो मैं कहता हूँ हम ब्रह्मास्मि, मुझे डरना नहीं चाहिए। ये तो डर भगाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे वो क्रोकोडाइल और हाथी को मत लाओ। अच्छा, तो महाराज जी वो वहाँ पे भी वो डर भगाने के लिए सामने नहीं, खड़ा वहाँ पे डर का कहाँ प्रश्न है? वो नहीं, हाथी उस केस के अंदर उसकी अज्ञानता थी। नहीं, वो तो नहीं, हाथी को मगर पकड़ के खींच रहा था और हाथी डर रहा, क्या करेगा क्या? उसके बाद उसने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। बराबर। तो हाथी भक्त था तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। बराबर। वो तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, बराबर महाराज जी। अब बाबा ऐसा मत करना तुम सभी चीजों को एक से, जितने क्रोकोडाइल है उसको एक साथ मत ले लेना। नहीं महाराज जी, अब मेरा यहाँ पे तीसरा एक सवाल था कि साधु जा रहे थे जंगल में तो सामने से एक मस्त हाथी आ रहा था, तो महावत ने उसको कहा कि अलग हटा, उसको वह नहीं हटा और उसको सूंड से उठा कर फेंक दिया। तो दूसरे जब ले गए तो उसने कहा कि मैंने तो इसमें भगवान देखे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये यदि ब्रह्मा भगवान थे तो महावत भी तो था, तो महावत की बात क्यों नहीं मानी? तो ठीक है। तो यहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता कि जब, अरे यहाँ क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे तो वो डर की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे डर की बात हो रही है।
जी ओके जी महाराज जी समझ गई। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, what spiritual instructions master gave regarding meditation and special disciples? देखो ऐसा है, जी हम नहीं हाँ जानते कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो उसको हाँ तुमको पढ़ना पड़ेगा, स्वामी तुरानंद जी की टीचिंग्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी हाँ ठाकुर से दिस एक्सेट्रा वो वहां पे मिलेगी तुमको। ओके जी वो बुक में देखेंगे, राइट। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन, nothing can be achieved, neither knowledge nor devotion nor direct spiritual experience, without God's grace. This sentence is also written in the article of conversation and dialogues. If it is so, then how to know on whom and when the God's grace will be bestowed? देखो जी हाँ अच्छा, हम तुमको बोलते हैं भगवान की कृपा कैसे होती है। जी हम बच्चे थे, स्टूडेंट थे, जी तो वो सूर्य कुमार है ना, हमारे मामा आके रहने लग गए। जी जी वो मामा स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते थे, हाँ तो हमको स्वामी विवेकानंद का नाम पता चला। बराबर, ये भगवान की कृपा से हुई कि नहीं हुआ? हाँ भगवान की कृपा हुई, राइट। उसके बाद में हम बड़े हुए, हमका स्वामी विवेकानंद कुछ पढ़ना पड़ा। हमारे फादर के शेल्फ में कंप्लीट वर्क्स पर स्वामी विवेकानंद पढ़ा हुआ था। अच्छा जी हम उसको पढ़ने लग गए, अपने से पढ़ने लग गए। जी ये भगवान कृपा हुई कि नहीं हुई? हाँ जिसको हम चांस कहते हैं, हमारे जीवन में इतने चांस आते हैं, ये चांस नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा से नहीं होता। उसके बाद में वो अरुण 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 झवेरी थे, हाँ जी उन्होंने हमको पेपर दिखाया। उन्होंने हाँ नहीं दिखाया कि देखो यहाँ पे रामकृष्ण आश्रम है, हाँ हमको मालूम ही नहीं था। जी उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे आश्रम है। फिर हम ढूंढते ढूंढते स्नेहलतागंज पहुंच गए आश्रम में। हाँ पुराने जमाने, पुराने आश्रम। हाँ ये क्या हुआ? भगवत कृपा है तो नहीं है? जी और इस प्रकार से अब प्रश्न करो तुम्हारा, फिर से देखो, तुरानंद जी यही कहते हैं कि नथिंग हैपेंस विदाउट गॉड्स ग्रेस। यस यही कहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल यही कहते हैं। अब यही मैंने उत्तर दे दिया आपको। हाँ आपने उत्तर दे दिया। अब मेरा इसमें एक छोटा सा एडिशन है महाराज जी, ये यदि ईश्वर कृपा से ही होता है, ये हमने भी रियलाइज कर लिया। वही कारण है कि यदि हम और आप इतने साल तक साथ में रहे बचपन से, एक पे कृपा हुई, दूसरे पे नहीं हुई, दूसरा वहीं घूम रहा है वकालत करते हुए, इतने बड़े महाराज बन गए, तो ये ईश्वर कृपा ही है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा ये आज रियलाइज हो रहा है कि इट वाज नॉट इन माय हैंड। ईश्वर कृपा आज हुई संडे टॉक्स के द्वारा, ये भी एक ईश्वर कृपा है, वरना ये आपने इतनी हो तो रही है, इतनी हो कृपा हो रही है। हाँ अब हो रही है तो वो ऐसा जरूरी है कि तुम साधु बनो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। भगवत कृपा एक प्रकार से आई है। अच्छा हाँ तो यानी इट हैज कम बाय इंटरवल। कभी भगवान थोड़ी किसी भी प्रकार से आएगी भगवत कृपा। अच्छा किसी भी तरह से आएगी जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरा रामायण चरितम, where Hanuman tells the sons of Ram, "Oh Kush, oh love and love, why are you so proud? If I had not let myself be captured, could you have captured me?" तो महाराज जी इसका एक्सप्लेन करेंगे आप? उसमें क्या है कि जब वो हनुमान को इन्होंने पकड़ लिया, हाँ जी, तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो मुझे सदा भगवान राम जो है मेरी सदा रक्षा करते हैं, मैं राम का भक्त हूँ जी। अरे लंका गए तो लंका में कोई उनको पकड़ नहीं सका। हाँ शत्रुओं के बीच में, अरे तुम क्या पकड़ोगे? हाँ मेरे को तो राम की कृपा है।
भगवान की कृपा से तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ और भगवान ने मुझे, राम ने मुझे कहा कि पकड़ में आ जाओ। जी। ओ ही आउट ऑफ कृपा गॉट कॉट। मैं है भगवान की कृपा के तुम मुझे पकड़ा जो है, मैंने मुझे तुमने पकड़ा है, वो खुद नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये भगवान की कृपा से तुमने मुझे पकड़ा है, याद रखो। बराबर जी, जी महाराज, गुड, बराबर जी। हाँ, my next question, the disciples would sit and meditate in their own way. Now and then the master would go to them and correct their posture. What is the correct posture for meditation as per master? उसमें यह है कि खास ये है कि सिर, गर्दन और पीठ वो हदा एक लाइन में होना चाहिए और शरीर हिलना नहीं चाहिए। Yes. बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। नीचे का आजकल के जमाने में तो कुर्सी बैठने हो गया ना, हाँ। लेकिन नीचे पहले पद्मासन में बैठो या सुखासन में बैठो या अद्म पद्मासन में बैठो, ये बैठते थे। लेकिन आजकल ये हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन, पीठ और कमर एक लाइन में होना चाहिए और शरीर नहीं हिलना चाहिए, ये खास बात। राइट जी महाराज जी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ये जो लव और कुश का जो ये है जो इंसिडेंस है, वो तुरानंद जी के इसमें किस प्रकार से लगता है? तुरानंद जी क्या ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे थे? नहीं, वो वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में तुरानंद जी ने बोला ये देखो ना। वो वेदांत की ज्यादा पढ़ते थे ना, वेदांत ज्यादा पढ़ते थे तो। नहीं, तो वो तुरानंद जी, ये कहाँ से आई बात, कहाँ से आई? तुरानंद जी खुद ही बोले, क्या बोल रहे? और ठाकुर भी खूब रोने लगे और तुरानंद जी की आंखों में भी आंसू आ गया। तो ये जो है महाराज जी, ये लिखा है, आफ्टर अ व्हाइल द मास्टर वेंट इनटू समाधि, ग्रेजुअली he regained his outer consciousness and sang a song from the Uttar Ramayana Charitam where Hanuman tells the sons of Ram. हाँ, ये आया है। तो वो बात करते करते ठाकुर समाधि में हो गए। हाँ। और उसके बाद में उन्होंने बात करते करते कहा कि अरे तुम क्या समझते हो, तुम क्या साधना करोगे, सब भगवान की कृपा से होता है। जी महाराज, वेरी करेक्ट। हाँ, now my next question. But now even meditation fails to evoke the celestial bliss or even a semblance of it. Please explain the meaning why meditation fails. देखो कौन सा 6 नंबर है ना ये? हाँ, 6 नंबर है, यस, आखिरी से 4 लाइन ऊपर। But now even meditation. ऐसा है कि 2 बातें होती हैं। हाँ, क्या बोला है, फिर से पढ़ो तो इसको, तुम्हारा क्वेश्चन। But now even meditation fails to evoke that celestial bliss or even a semblance of it. यानी दिव्य आनंद और झलक भी फेल हो जाती है मेडिटेशन में। वो पहले ठाकुर का ये उसको ले लो, उसके ले लो कि ठाकुर के प्रेजेंस में ये होता था, कितना आनंद आता था हमको, ऐसा ही लिखा है ना। यस। हाँ, अब नहीं होता है ये, यही बात कही ना। उसको शुरू से लो। हाँ, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, शुरू से पढ़ो ना उसको। Yes, an hour of congregation signing in the company of the master would fill us with such exorbitant joy that we would feel transported, as it were, into the eternal range. But now even meditation fails to evoke that. पहले ठाकुर के प्रेजेंस में रहते थे तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता था। वहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होते थे ठाकुर के प्रेजेंस में कि हम लोग ध्यान में एक घंटे में भी इतना अच्छा होता था कि जैसे मारो सारा दिन हम ध्यान किया हो, ये होता था। और अब और क्या है कि आवर सिटिंग जनक में, अब जो है वो बैठने पर भी नहीं हो पाता। यानी तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? ये समझ में आ गई ना बात? ये बात पर मेरा प्रश्न ये है कि पहले ठाकुर के साथ समूह में बैठते थे
तो बड़ा उत्साहित होकर बैठते थे और बड़ा अच्छा। अब तो ठाकुर का प्रेजेंस नहीं है ना, ठाकुर नहीं है हमारे पास में। इवन मेडिटेशन, हाँ, यानी ठाकुर भी नहीं है ना, उसका प्रभाव बाहरी, उसका एक्शन में प्रभाव तो होगा ही ना, बाहरी ठाकुर को वातावरण इम्पोर्टेंस दिया गया कि ठाकुर की प्रेजेंस। अच्छा, अरे भाई ऐसा है जैसे बनारस में आप बैठो, बनारस में ध्यान हाँ, करो और इंदौर में ध्यान करो में फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। तो यही बात है, ठाकुर के प्रेजेंस में ध्यान बहुत गहरा होगा, अच्छा होगा। हाँ, ओके, करेक्ट महाराज जी, बिल्कुल क्लियर समझ में आया। Mother, may these children of mine surpasses me in spirituality. What Master wants to say and how the children surpasses spirituality. Is all the parshas of Sri Ramakrishna, they have surpassed the spirituality and meditation. ये बेचा बचपन में अपना पिताजी जो चाहते हैं कि मेरा लड़का जो है वो मेरे को, मेरे से आगे बढ़ जाए, जी बराबर, बिल्कुल। इसी प्रकार ठाकुर भी चाहते थे कि मेरे ये शिष्य जो है वो मुझसे आगे बढ़ जावे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो उन्होंने बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए ये बाबा हम नहीं जान सकते, कैसे जानोगे तुम? नहीं वो तो सब बराबर, तुम कैसे ठाकुर के वो शिष्य आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ये तुम कैसे जानो? बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी। हाँ, non acceptance of gift, are the pranamis and other articles given by sadhak and the followers? Yes, yes. अच्छा, तो ये नॉन एक्सेप्टेंस यानी अपरिग्रह जी बराबर। हाँ, तो ये तो बनाए हम रामकृष्ण मिशन के साधु लोग तो जरा भ्रष्ट हो गए हैं, जब तुम प्रणामी देते हो तो उसको ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी जन में रेगुलर साधु जो है ना पुराने, वो कभी नहीं लेते, प्रणामी वगैरह नहीं लेते। जैन साधु कहाँ लेते हैं जी? हाँ, नहीं जी जी, ओके, चलो। ये महाराज जी, नाउ नेक्स्ट। Vedanta says that a knower of Brahman becomes fearless. Here, what type of fearless? Is it a worldly fearless? सब फियर, मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, बीमारी का भय नहीं होता, आवे या ना आवे। स्वामी ठाकुर के शिष्य जो स्वामी अखंडानंद थे वो अकेले सारा संसार में घूम लिए, उसमें एक लकड़ी लाठी को लेना बस, उसके पास पैसा भी नहीं है, बिल्कुल निर्भय, किसी चीज का दुनिया में भय नहीं जी, मृत्यु का भय नहीं, सांप बिच्छू किसी का भय नहीं। हाँ जी, right. And my last question is, mother has made her own rules. What are the rules mother has made? Page 22. क्या किसके रूल्स? Mother has made her own rules. Page 22 पे लिखा हुआ है, second paragraph. One day someone proposed framing some rules. The Swami replied, "Why do you want rules? Is not everything going on nicely and orderly without formal rules? Don't you see how punctual everyone is? How regular we are? No one ever is absent from the classes or meditation. Mother has made her own rules." ये जगदम्बा ने, भगवान ने मदर यानी भगवान यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, यस, भगवान ने अपने रूल बना लिए हैं। हाँ, यहाँ रामकृष्ण मिशन में हम रहते हैं ना, तो कोई हम लोग को रूल दिए नहीं गए हैं कि ये करो वो करो वो करो ये करो, ऐसा कोई बोल नहीं रहते हैं जी। सब काम बढ़िया चल रहा है और क्या है। अच्छा, हाँ, सब काम बढ़िया चल रहा है, सब अपने ढंग से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, टाइम पे आ जाते हैं, खाने आ जाते हैं, आरती में चले जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब अपने रूल चल रहा है, कोई रूल बनाए थोड़ी है। अच्छा, अब महाराज जी एक छोटा सा सवाल ड्यूरिंग दिस इसके अंदर आया है, ये ब्रह्म सत्य जगत सत्य सत्यम सत्यम ये है, तो इट इज नियो अद्वैत, इसको नियो अद्वैत कहेंगे क्या? क्योंकि अरे दिलीप भाई,
जी पहले तुम ये तो जानो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो अच्छी तरह जानो। हाँ हम जानते ही नहीं, हम हमेशा, हम तो जगत को सत्य लेके ही चलते हैं। तो नया इतना ऐसा है, नियो वेदांत नहीं है। तो पूछा जाए तो वेदांत की एक स्थिति ऐसी आती है कि जो भक्त, जो वेदांती है, वो ब्रह्म का जब साक्षात्कार करता है तो उसके बाद उसे दिखता है कि ये सारा जगत भी ब्रह्म ही है। वो अहम ब्रह्मास्मि करता रहा था और जगत को मिथ्या बोलता रहा था, शुरू में बोलना पड़ता है। लेकिन जब साक्षात्कार समाधि में हो जाता है, समाधि से जब नीचे आता है तो देखता है, अरे ये ब्रह्म ही, जगत भी जो है ना, ये नाम रूप छोड़ दो, बाकी ब्रह्म जगत जो है वो ब्रह्म ही है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में यही वर्णन किया। जी 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 महाराज, उच्चतम स्थिति में सब कुछ एक ही होता है, ब्रह्म हो जाता है। बस महाराज जी प्रणाम। अच्छा अच्छा, 1 2 3 हो गए। अब कौन बचा? मेरे नेक्स्ट नंबर दिलीप भाई हो गए, कुंकू हो गया, सुधीर मजूमदार हो गया। अब किसका नंबर है? सतीश विक का नंबर है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ भाई आ जाओ। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जी heard a voice, come let us go home. Swami ji analyzed his mind and came to the conclusion that it is the tendency of his mind and he would destroy the tendency of the mind. Maharaj, our mind too have many tendencies which come in the way of our spiritual progress. Some of which we know and some are hidden in deep layers of the mind. Maharaj, how to destroy those tendencies of? देखो भाई, ऐसा है कि साधना में हमेशा याद रखो 2 चीजें हैं। एक निगेटिव साधना है, कुछ चीजों को हमको त्यागना है। और ये त्याग जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो फिजिकल त्याग होता है और एक विचार करना पड़ता है। अब जैसे रुपया है, पैसा त्याग करना है, तो भाई वो बार बार विचार करना पड़ेगा कि ये माया है, ये बंधन है, संसार में इतने सारे बंधन हमने बना के रखे हैं। उसको जो निगेटिव है चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो है, इनसे संबंधित जो चीजें हैं, उनको एक तो बाहरी दृष्टि से त्यागना पड़ेगा और दूसरा विचार के द्वारा त्यागना पड़ेगा। तो ये तो एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। निगेटिव प्रोसेस साधना की बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में पॉजिटिव प्रोसेस भी है, और निरंतर भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। राइट राइट महाराज, इसके साथ एक मैंने और क्वेश्चन पूछा था। व्हाट वुड हैपन इफ वन डाइज फाइटिंग और tendencies but without destroying the sin, without overcoming it? तो कोई बात नहीं, जहाँ तक गए हो वहां तक हो, उसके बाद में आगे तुमको नया जन्म मिलेगा। जहाँ तक तुम गए हो उसके बाद गीता में लिखा, महाराज कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि अगर वो अपने जो का साधन करते करते अभी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में श्रीमान पुरखों घर में जन्म होगा, जहाँ फिर हाँ तो ठीक तो है। जी जी महाराज, जी महाराज, ऐसा ही होता है महाराज जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। When Swamiji was perturbed by the poor living conditions of Shanti Ashram, a disciple told him to have faith in Divine Mother. महाराज उसके बाद क्या हुआ? How did the inhabitants of the ashram survive the dire condition at the ashram? नहीं, ये सब जितने भी उनके अमेरिकन डिवोटीज थे, उन्होंने खूब काम किया, वहाँ पे आश्रम बनाया। और आश्रम में स्वामी जी कई 1 साल तक रहे थे। और उसके बाद में भी चलता रहा आश्रम। उसके बाद आ गए थे, उसके बाद में चलता रहा था। एक क्या नाम याद नहीं आ रहा है, एक गुरुदास महाराज करके एक स्वामी जी थे, सन्यासी थे। उसको उनके मैंने दर्शन किए थे वहाँ पे। अतुलानंद जी वहाँ पर कई वर्षों तक रहे थे वो। तो ये शांति आश्रम चला था। तो जी। और अब तो क्या है कि अब वो एक छोटा सा एक मकान जैसा बना हुआ है, कुछ होता नहीं है वहाँ पे। लेकिन कई वर्षों तक चला है ये, 50-60 वर्ष तक, बल्कि और ज्यादा चला होगा वो। अब नहीं चलता महाराज, अब नहीं चल रहा। अभी मेरे पास किसी ने भेजा है एक, ये अपने इन्होंने तो भेजा है, देवाशीष ने। यस महाराज।
मैं विजिट किया था। You send that photo, one photo, small photo of just one cabin, as nothing else is there. Nothing else. There are two or three cabins are there. वो spiritual retreat होता है। हाँ, spiritual retreat होता है वहाँ पे। चलो ठीक। हाँ, वो खाना उना लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। बहुत दूर है, हिली एरिया में है। स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है 1 दिन का पूरा। 1 दिन का रिट्रीट होता है, बस और कुछ नहीं हो। ठीक है, अभी वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसका मतलब अभी वो पड़ गया ही है। नहीं, वो नहीं, अब नहीं है, पर ये कई वर्षों तक था। जैसे मैंने कहा ना, गुरुदास महाराज को मैंने देखा था, अतुलानंद जी वहां पे कई वर्षों तक रहे थे। ठीक महाराज। महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Swami ji was very strongly opposed to all planning. Let mother plan. But trusting in mother does not mean idleness. Try to know her will. Maharaj, how do we know her will? How उन्होंने कहा ना स्वामी जी ने, try to know her will. मदर ने प्लानिंग कर रखी है, try to know her will. तो ऐसा है कि साधना के द्वारा अगर आप साधना करेंगे ना, अभी जो डिस्कस किया है ना, प्लान, मदर का प्लान जो है ना, अब आप जैसे हमने कहा कि भाई हमको अचानक हमारी किताब, हमारे किसी ने विवेकानंद का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर हमको कहीं किताब मिल गई, फिर किसी ने बोल दिया कि रामकृष्ण आश्रम है यहाँ पे, उनके पास जाने लग गए, फिर उनसे प्रश्न करने लग गए। तब ये क्या लगता है, इट इज अ प्लानिंग गोइंग ऑन समवेयर, एक प्लान हो रहा है। अगर तुम शांति से उस दिशा में जाओगे तो उस प्लान के अनुसार हम चलते जाएंगे। जी जी बात। We do not know what is mother's will, and without planning or scheming. We may or may not know, but we are all driven by mother. जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था, doesn't it lead to idleness or tamas? No. Mother, it is out of question. हम प्लानिंग के बात को जानते नहीं तो मदर्स विल जो है ना, वो एब्सोल्युटली इट इज नॉट, नथिंग टू डू विद आइडलनेस। जी महाराज, हम मतलब कि हमारी जीवन में छोटी छोटी प्लान करके तो हमें काम करना पड़ेगा ना। तो करो ना, उसमें क्या नुकसान है। नहीं, मदर्स विल जो है, अगर तुम एक थोड़ा सा काम करोगे, साधना करोगे, तो भगवान की कृपा आएगी, रास्ता तुमको और मिल जाएगा। तुम बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे आप बन करके मैं 1000 जप करूंगा, 2000 जप करूंगा, देखेंगे कि ऐसा करने से लगता है कि आपका मन स्पष्ट हो गया है और रास्ता खुल गया है। आपको पता लगेगा, कोई बता देगा कि फलाने स्थान पे जाके करो तो अच्छा स्थान मिल जाएगा, बोलेगा कि मंदिर में वहां जाओ, वहां अच्छा मिलेगा। ऐसे या इफ यू डू समथिंग, माँ जगदम्बा जो है वो आपको रास्ता दिखा देगी। जी ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो मैंने आपने बता ही दिया। उन्होंने स्वामी जी हैंडेड ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आश्रम टू गुरुदास एंड लेफ्ट फॉर इंडिया ऑन June 6, 1902। तो उसके बाद तो ये हुआ जो सब हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामी जी कोटेड एंशिएंट आइडियल ऑफ वेदांतिक मॉन्क इन द फॉलोइंग वर्स ऑफ शंकराचार्य। हाउ डिफिकल्ट इज टू फॉलो दिस आइडियल बाय मॉडर्न डे मॉन्क्स। उसमें है ना हमारे शंकराचार्य का वेदांत वाक्य सदा रमन, तो यही है ना। हाँ जी। कौन सा नंबर प्रश्न है ये तुम्हारा? ये है कौन से पेज पे है? 25-25 तुम्हारा प्रश्न कौन सा है? तुम्हारा प्रश्न कौन सा है? फिफ्थ वन। तो क्या है उसमें? क्या है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बोलते हो, कोशिश करो ना। जी महाराज जी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो कोशिश करोगे तो सहायता मिलेगी। महाराज ने उसमें लिखा है कि जो साधक है वो तो पेड़ के नीचे रहेगा, वो गंगा जल पिएगा, बस। नहीं, जितना तुम पेड़ के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन जितना कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना। जी उस टाइम में ऐसे साधु ऐसा था वहां पर। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण तुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करेण चरन्तः कौपीनवन्तः बलुभाग्यवन्तः मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयः। ये तो हम रोज पाठ करते हैं ना कि वो भिक्षा मांग के खाता है, पेड़ के नीचे रहता है,
तो वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल इसी प्रकार से रहना, ये आदर्श है और तुम उसको जितना जीवन में उतार सको उतना करो। यानी गृहस्थ लोग जो है वो भिक्षा के लिए, भिक्षा से तो तुम रह नहीं सकते हो। जी मेरे कहने का मतलब कि उस समय का एंशिएंट टाइम का जिस समय शंकराचार्य जी ने कहा है उस टाइम का होगा ये। अरे हम बिल्कुल 100% ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसे में स्थान पे रहते थे, यहाँ पर कुछ नहीं, एक वाटर यानी एक ट्यूबवेल था और एक कुटिया थी और मधुकरी करके खाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां पे, तो ऐसे में भी तो रहे हैं हम। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कि भाई वो पेड़ के नीचे तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा भी रहे। और एक दिन का प्रश्न है, एक दिन में जड़ पेड़ के नीचे भी रहा हूँ, यानी कहीं जा रहा था कुछ नहीं था तो पेड़ के नीचे एक रात को हम वही पेड़ के नीचे ही सोए। जी तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको ऐसा मत समझो कि इस जमाने में नहीं होता, अगर कोई चाहे तो ऐसी परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन अब क्या है कि सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, इतनी भीड़ भड़का हो गया है, कहाँ एकांत मिले, बड़ा मुश्किल, इसमें कोई शक। राइट महाराज जी, बिल्कुल महाराज। ये श्लोक कहाँ पर है, ये जो आपने बताया अभी? ये तो वो है वो कोपिनवंत। अच्छा कोपिन पंचकम, कोपिन पंचकम, ठीक है। 5 श्लोक है। कौन सा मतलब? 5वां श्लोक है, 5 नहीं 5 श्लोक है, 5 दोनों, पांचों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोपिन पंचकम मिल जाएगा। हम तो लोग तो रोज इसको चैंटिंग करते हैं। जी महाराज, लास्ट क्वेश्चन महाराज, ये बुक कौन सी है जिसमें से ये आर्टिकल लिया है, ये जो हमने लिया है? स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बाय स्वामी चेतनानंद। अच्छा जी महाराज, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, ठीक महाराज। स्पिरिचुअल टॉक्स जो है वो किताब डिफरेंट है, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बाय स्वामी चेतनानंद। जी महाराज, ठीक महाराज, प्रणाम। हाँ, अब किसका नंबर है भाई? 4 हो गया, अब आ जाओ निवेदिता। हाँ जी महाराज, आ जाओ। पहला प्रश्न है महाराज, जो ये पहला जो which words of शंकराचार्य changed the life of तुरानंद? योगस्य प्रथम द्वारम वाग निरोध परिग्रह निरीह निराशा च नित्यम एकांतशीलता। ये यहाँ लिखा ही हुआ है। वहाँ लिखा हुआ वही लिखा है। ये हिंदी वाले में लिखा हुआ है महाराज? नहीं, ये मैं जानता हूँ ना, उसका ट्रांसलेशन जो है उसमें। अच्छा, ओके, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, which नरहरि's वर्ड्स लाइफ इज मेंट फॉर द रियलाइजेशन एंड जीवन मुक्ति? वो नरहरि के बहुत सारे हैं। हाँ, वो नरहरि का जो बोला ना, हाँ, वो नरहरि का ही है, जो अपने वो है वेदांत वाक्येषु सदा प्रवरन्त भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः। अच्छा, कौपीनवंत, ये मोस्ट प्रोबेबली नरहरि का ही है। अच्छा। तीसरा प्रश्न है महाराज, हाउ डिड तुरानंद डिस्ट्रॉय द थॉट दैट आई हैव टू गो बैक होम? ऐसा मतलब मेडिटेशन, संकल्प के कारण, डिस्ट्रॉय, डिटरमिनेशन दैट आई मस्ट डिस्ट्रॉय इट, संकल्प के द्वारा। अच्छा, और ये चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द ग्लॉस ऑफ वो ज्ञानानंद? ज्ञान का ये आता है ना, मतलब नहीं, ज्ञानानंद के टीका है ये। टीका है। अच्छा, ग्लॉस मतलब क्या? टीका है महाराज? हाँ, ग्लॉस यानी टीका। टीका, हाँ वही। अच्छा, अभी उसके बाद है, व्हाट इज द संस्कृत वर्जन ऑफ द शंकराचार्य श्लोका? पेज नंबर 25 है। वही तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त। ठीक है, ओके। अभी इफ द नॉलेज ऑफ डिविनिटी इज विद इन अस, ये तो आपने अभी बताया, शास्त्र को पढ़ने उतना जरूरी नहीं है। नहीं, पढ़ो, तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ो। मैं पूछा, इफ द नॉलेज ऑफ डिविनिटी इज विद इन अस, तो व्हाई शुड वी स्टडी शास्त्र? शास्त्र को पढ़ना कितना जरूरी है? हाँ, इसलिए पढ़ना चाहिए कि नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे।
ये नहीं समझते। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अरे शास्त्र का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है जितना साधना का है। लेकिन तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे ना तो न्यूज़पेपर दिन भर पढ़ोगे। ठीक, ये ये बराबर। नहीं समझते हो। वचनामृत करना, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना, ये तुरानंद जी का ये उपनिषद, ये पत्रावली पढ़ना, इतने इम्पोर्टेंट शास्त्र है ये। इनको बंद करोगे तो कैसे काम चलेगा। और एक बार पढ़ने से होता भी नहीं महाराज, वो बार-बार दूसरे पढ़ना पड़ता कॉन्टेक्स्ट है। में मैंने कहा। हाँ, नहीं 12 बार पढ़ना है, नहीं तो यही होगा, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ोगे। क्योंकि माइंड में एक बार हो जाता है ना कि शास्त्र पढ़ना इतना जरूरी नहीं, तो वो आदत नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें कथामृत, वचनामृत, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, तुरानंद जी का जीवनी, तुरानंद जी के उपदेश, तुरानंद जी के पत्र, उसके बाद में फिर स्पिरिचुअल टॉक्स, और ये इतनी सारी जितनी चीजें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, वो हमको एनकरेज भी करती है। नहीं बहुत इम्पोर्टेंट मार्क मिलता है। हाँ, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द श्लोका ऑफ शंकराचार्य, पेज नंबर 27 में, वो कौन सा है? ये जो नहीं वो श्लोक नहीं, ओनली वो उन्होंने, महाराज ने केवल अपनी कमेंट्री एक लाइन सेंटेंस दिया है बस, वहाँ श्लोक नहीं है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम। नहीं वो देखो ना, वो क्या लिखा है वहाँ पे इंग्लिश में। He then recited with Swami Akhandanand an Upanishadic mantra, Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahman is truth, knowledge and infinity. Slowly he closed his eyes. महाराज वो नहीं, a man of realization is not shaken even by the pain caused by the application of the sharp weapon. अब वो इसका मेरे को पता नहीं, ये शायद तो स्वामी जी ने केवल कमेंट किया है, मत पता है। यही वाला था। ओके, बस ठीक है महाराज। चलो, इतु घोष जी प्रणाम महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, ट्रस्टिंग इन मदर डज नॉट मीन idleness. Try to know her will and then be up and doing like a man. And so my question is, knowing mother's will is not easy. It might take very long. Then how one can proceed? वो महाराज तुरानंद जी जो है ना जी, वो इतने पुरुषार्थी थे, याद रखो। कठोर तपस्या किया करते थे और फिर भी मदर्स विल किया करते थे जी। तो बाबा, हम जो जानते हैं, जो हमें करना चाहिए वो किए जाओ। अच्छा, मदर विल की चिंता भी नहीं करो जी। Whatever you consider right, do your स्वधर्म। स्वधर्म और साधना जो जानते हो उसको कर लो। जब लगेगा कि मैं और करूं तब समझना कि माँ की कृपा है। अब मदर विल बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नहीं, खूब जम के लगो जी। खूब जम के लगो, और ये माँ की कृपा होगी। महाराज शारदानंद जी का एक सेंटेंस है कि कृपा अर्थात है कोरे पावा। कोरे पावा। कृपा यानी करना। करना। यानी जब आपको लगे कि मैं साधना करूं, कुछ करूं, तब समझ जाना कि माँ की कृपा हुई। Second question है, of reading Swami Turiyanand gave us the advice to read only books written by men of realization. So how can we judge or know whether the author of the book is a man of realization? Don't worry about it. सुनो, वचनामृत ठीक है ना जी? लीला प्रसंग ठीक है जी। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद ठीक है जी। डायरेक्ट डिसाइपल्स तुरी अपने इटर्नल कंपेनियन ठीक है। ठीक है। तुरानंद जी के पत्र ठीक है जी। तो हो गया ना इतना, और क्या चाहिए? इतना हो गया। गीता
हाँ और गीता है, स्वामी जी के पत्रावली भी है। सब है, बहुत सारा है। स्वामी जी का तो मैंने विवेकानंद साहित्य बोल दिया था। जी तो फिर अब क्या चाहिए तुमको? जी हाँ। जी, बस इतना ही है। प्रणाम महाराज। अच्छा रीता विश्वास। Pranam Swamiji. हाँ Both my आ जाओ। questions have been answered. हाँ Both चलो। my thank हाँ? you, Swamiji. Both my questions Subir ji asked. अच्छा They have been answered. फिर भी पूछ लो, फिर से पूछो। पूछ लेती हूँ Swamiji. First question is page 12, second paragraph. Sri Ramakrishna tells Swami Turiyananda that the more one increases one's love for God, the more tendencies like lust, anger, jealousy decrease. How to increase one's love for God? Love for God will increase by satsang, स्वाध्याय, पूजा, संतों की जीवनी को पढ़ना, moral values, वैदिक भक्ति जिसे बोलते हैं ना, परा भक्ति नहीं, वैदिक भक्ति सब करो। इन सब को करते रहो तो तुमको भगवान में प्रेम आएगा। You will develop love for God. Okay? Second question is page 17, last paragraph. Here Swamiji says that first door to yoga is control of speech, non-acceptance of gifts. Most difficult is speech control. Kindly explain how can. अच्छा सुनो, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि होता क्या है कि हमारे इन आवर माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मौन नॉट टू स्पीक इज नॉट फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। हम समझते हैं कि दुनिया में बात करना पड़ेगा हमको, हम नहीं समझते हैं कि रिमेनिंग मौन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन आवर माइंड। नो, इसलिए कि प्रॉब्लम होती है। पहले मन में अच्छी तरह बिठा लो कि कंट्रोल ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंस जो है वो मेक इट स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड फर्स्ट इट। यस एंड सेकंड इज, तो मैंने कहा ना ये सोशल बेनिफिट जो है ना, ये स्पिरिट। सेकंड इज क्या है कि ये उसके जो इम्पोर्टेंस है ना, मौन रहने से ध्यान अच्छा होगा, ये इसको मन में अच्छी तरह बिठा। Second point is when you start slowly. Yeah, at least 1 or 2 hours every day I will not speak. ऐसा बना लो। There are some times where you can remain quiet. अभी डिस्कस हो गया है, मैंने डिटेल में कहा है। yes. हाँ, और ऐसा है कि avoid worldly company की, avoid the company of worldly people as far as practical. You know, संसार में you are living in the world and sometimes it is difficult, but it is very important to avoid this practical. Yes. हम भी तो क्या है, when we did not become a monk, so we had to live, but we used to carefully avoid these people who will just only gossip and that waste our time. So it is other. And secondly is क्या है कि fault finding जो है is very important. याद रखो, फॉल्ट फाइंडिंग की हमारी हैबिट होती है, उसको स्टार्ट टू कंट्रोल करो। एंड वी वांट टू टॉक ऑफ दिस, तो बी वेरी केयरफुल। इसको बना लो, एक इम्पोर्टेंट साधना बना लेनी है। अगर मैंने आज बोला है बहुत ज्यादा, इफ आई स्पोकन टू मच टुडे, देन यू डू फास्टिंग, गिव ए पनिशमेंट टू योरसेल्फ। आई हैव टॉक टू मच टुडे, I will not take food in the night. Like that संकल्प किए बिना it will not be able to control. ठीक है? हो गया? महाराज मेरा क्वेश्चन है, महाराज स्पीच तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन मन बहुत बोलता है अंदर। Don't worry about that. Don't worry about that. Here we are discussing only speech. जी, बहुत विचार करता है। मन के लिए जो है वो चांटिंग करना है, ध्यान करना है, राइटिंग करना है,
राइटिंग वर्क करने से मन को एक डायरेक्शन मिलता है, कुछ ट्रांसलेशन करना है, ऐसा करने से मन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होता है। ये सारी साधना तो उसी के लिए है ना, और किसके लिए है? ओके जी महाराज। देवाशीष। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ महाराज जी, मेरा तो क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन था। मैंने ये पहला क्वेश्चन है, स्वामी तुरायानंद जी महाराज did extreme austerity during tapasya. To do meditation, a person needs health in good condition, at least no stomach trouble and headache. How can a person do so much austerity ignoring the body? Are these any tricks, mantra or hatha yoga? It seems impossible for a normal person to do the same. इसीलिए तो that's why the normal person remain the same. Yes, correct. बिना उसके होगा नहीं. We have to forget the body. Yes. Forget body को इतना पैम्पर करते हैं कि बस बॉडी को सारा जिंदगी पैम्पर करते रहते हैं और कुछ ध्यान जब कुछ नहीं होता. जितने सेंट्स हो गए हैं सबने अपनी बॉडी को डिसरिगार्ड किया है. एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें लोगों ने बॉडी को पैम्पर किया. डोंट ये जो है ना एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि बॉडी को हम करेंगे तो बीमार हो जाएगी, ध्यान नहीं कर सकेंगे. ये फालतू की बातें हैं. कोई नहीं होता. जी महाराज, जी महाराज. ओके, थैंक यू महाराज. समझ में आया महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Swami Turiyanand ji leave Shanti Ashram at the initial stage of building up the same? Swami Vivekananda asked him to develop the Shanti Ashram, but he left within a short period of time. What is the reason? ऐसा है कि उनको प्रीमोनिशन हुआ था कि स्वामी जी नहीं रहेंगे. Yes. और वो स्वामी जी से मिलना चाहते थे, तो वो तो कह के आए थे कि मैं वापस लौटूंगा. लेकिन जब रंगून में आया तब उन्होंने सुना कि स्वामी जी चले गए, शरीर चला गया है, तो बिल्कुल टूट गए. अपने सब विदेशी कपड़े छोड़ दिए उन्होंने, और बेलूर मठ भी शायद नहीं गए थे, वो तपस्या के लिए चले गए. उसके बाद सारा जीवन उनका परिवर्तित हो गया. तो वो एक्चुअली स्वामी जी को मिलने के लिए आए थे, इसीलिए आना चाहते थे. उनको बहुत तेजी से लग रहा था कि स्वामी जी से मिलूं. ओहो, जी महाराज. थैंक यू महाराज. ठीक है, थैंक यू. हाँ, थैंक यू महाराज. क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चंस हो गए कि नहीं हुए? हो गए महाराज. हो गए महाराज. हाँ, बस महाराज जी एक क्वेश्चन हो जाए यदि आप परमिशन दे तो. बोलो. महाराज जी ये आर्टिकल का आखिरी सेंटेंस है, you have been bitten by the cobra. The poison will have its effect. You will never be your old slaves again. The master has accepted you. यानी क्या कि ये उनको मुक्ति मिल गई, ये कहना चाहते हैं? बिकॉज नहीं वो मिल जाएगी. एक बार रामकृष्ण मिशन के चक्कर में, ठाकुर के चक्कर में आ गए ना. हाँ, तब और अब बच के निकलना नहीं हो सकेगा. नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन अमेरिका he told his Vedanta students. ये उन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा है. हाँ, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आ गए हो, मैंने तुम पर कृपा की है. मतलब ये है कि तुमको कोबरा ने खा लिया है, अब तुम्हारी मुक्ति हुए बिना तुम मुक्त छूट नहीं सकते. ओके, अच्छा, राइट. हो गया, बंद करें. महाराज. मंत्र महाराज. मंत्र. हाँ भाई. संजय क्या हुआ? संजय. हाँ, अच्छा, सबसे मुलाकात हो गई कि नहीं मुलाकात हो गई? ये मधुबाला तो कभी पूछती भी नहीं है, तो भामरी जी नहीं पूछते हैं. आज पंकज भाई आए थे ना, पंकज भाई है ना, स्वामी जी. सरला बहन भी है, भुवन भी है.
प्रणाम स्वामी जी। पंकज भाई नेक्स्ट टाइम किसका टर्न है? प्रणाम स्वामी पंकज भाई जी। नेक्स्ट टाइम कौन है? प्रणाम स्वामी जी। नेक्स्ट टाइम मेरा है स्वामी जी। अच्छा ओके ओके गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इस अगला फिर आगे कोई वो कहाँ है? ओए यही मैंने कहा कि सीके कहाँ है? सीके इज आल्सो हियर। ओके कार में बैठे हुए हैं आप लोग हैं? कार में ज्यादा अच्छा सुनाई देता है सीके। स्वामी जी हाँ आज कोई और भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपको प्रणाम ये करना कौन? चाहते हैं। सुचरिता सेन है, प्रणाम महाराज जी। सुमित्रा धरेश्वर है, मयंक भाई है। हाँ? मयंक भाई भी है। मयंक भाई दिख रहे हैं। हाँ मयंक भाई है। विनोद, ये तो विनोद भाई, विनोद शाह। नहीं वो मयंक भाई दिख रहे हैं, सफेद मूछे वाले ही है। अच्छा तो विनोद भाई के उसमें मोबाइल में है। अच्छा ठीक है। नमस्कार नमस्कार। सब लोग भाई आइए नेक्स्ट टाइम और हमारे नेट बंद था पंजाब में। अच्छा भाई ठीक है। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी